दिस वॉज द वन पॉइंट जो सुन के मैं ऐसा होती कि यार मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया ये। फाइनली द मोस्ट हेल्पफुल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता होंगी देन यू विल हैव टू फेस लॉट ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। What's up? Welcome back to my channel and welcome back to another video. So I'm back with another video that will be helpful for MBA aspirants, specifically for those people who will be starting their MBA journey in this year, that is 2024 to 2026. I am filming this video on 14th January 2024 and my MBA journey began on 7th July 2023. So I have completed 6 months of my MBA life. 1/4 of my MBA life is done and trust me when I say this, ये 6 महीने ऐसे निकले मेरे को पता ही नहीं लगा टाइम कहाँ चला गया। मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई जब से मैंने बी स्कूल ज्वाइन किया है। एंड दिस 6 months of journey, there are a lot of things that I've learned about myself. There are a lot of lessons that I've learned, and apart from that, there are a lot of things that I wish I knew earlier, so that मेरी बी स्कूल की जर्नी थोड़ी easy होती, मैं थोड़ा और prepared होती as compared to how it went. So here I am with the video. I have made some pointers about things I wish I knew earlier. All of these are coming from my 6 months of experience that I'm going to share with you guys, so that you guys are well prepared and you know what you're getting into. Don't worry, I'm not going to scare you. This is a very exciting journey that you're going to start. Yeah, this video is going to be very helpful for you guys. Make sure you watch till the end. But before that, if you're seeing this face for the very first time, hi, I'm Shivani and I make beauty, fashion and lifestyle videos here on YouTube. Make sure to subscribe to my channel if you haven't already. I'm sure I'll have a great time here. Hit that bell icon so that every time I upload a video, you get notified. And now without any further ado, let's get into the video. Alright, so here are a list of points that I've noted down to share it with you guys. मैंने बस points note down करे हैं, बाकी सब तो एकदम दिल से निकल के जो आएगा वो बताऊंगी. So the first thing is that you should be prepared about what you're getting into. अगर आप work experience वाले हो तो आपको already पता होगा, but trust me, अगर आप freshly graduate हो and आप ये expect कर रहे हो कि आपकी college life की 2 साल की और extension है, तो ऐसा कुछ नहीं है. ग्रेजुएशन में हम सब बहुत चिल मोड में होते हैं एंड वो बिना ज्यादा एफर्ट लगाए बस निकल ही जाती है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज. किसी कोर्स में बिल्कुल एफर्ट नहीं लगता, किसी कोर्स में थोड़ा बहुत लगता है, बट मोर और लेस ग्रेजुएशन काफी स्मूथली सेल हो जाती है. बहुत फन मोड में होता है, बहुत कैजुअल एटीट्यूड होता है. But when you're joining a B school, it is a completely different world that I was not aware of when I joined one. Everything in a B school is very professional, very strict, very hectic. अब you'll be slammed with deadlines and all, इसके बारे में आगे बात करूँगी. But you'll have so many things to handle when you're in a B school. Classes तो होंगी, उसके अलावा there are multiple other things like there are seminars, there are leadership talks of the companies, those who come to the campus for placement. You have to attend those talks. आप किसी कमेटी का पार्ट होते हो तो उसके भी काम होते हैं. That we'll get into later on. Other than that, आपके क्लासेस के साथ इतने सारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स वगैरह ये सब होते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपको थोड़ी मुश्किल होगी, उसके बाद वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, थिंग्स स्टार्ट टू गेट बेटर. आपको चीजें इतनी ज्यादा ऐसे डॉन्टिंग नहीं लगती, आपको हैबिट हो जाती है. देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग द बी स्कूल लाइफ. फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई वॉज ऑलवेज एंक्शियस. सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आते आते मैं चिल आउट हो गई, मुझे थोड़ी हैबिट हो गई इन सब चीजों की. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्केरी ही रहता है, बट देयर आर ऑल्सो डेज व्हेन यू आर वेरी फ्री एज वेल. आपके पास ज्यादा काम नहीं होता, सिर्फ क्लासेस होती है, उसके बाद यू हैव टाइम टू एंजॉय. स्पेशली एग्जाम्स के 1-2 हफ्ते बाद आपके सर पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता, सो देयर आर चिल डेज एज वेल. इवेंट्स वगैरह भी होते हैं जिसमें आप एंजॉय करते हो. दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट अ DU लाइफ वाला कैजुअल लाइफस्टाइल मत एक्सपेक्ट करें. Next is somewhat related to this point, that is you have to start taking your deadlines and your attendance very seriously. Graduation में हम बहुत lenient होते हैं, deadlines से इतना फर्क नहीं पड़ता. इतनी ज्यादा deadlines होती भी नहीं थी graduation के टाइम पे, बट यहाँ पर आपको हर चीज की बहुत सारी डेडलाइंस मिलेंगी, नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, बट आपको अगर किसी कंपटीशन में रजिस्टर करना हो, आपको अगर किसी कंपनी में अप्लाई करना हो, तो जो भी आपकी प्लेस कॉम होते हैं, जो कंपनीज लेकर आती है फॉर इंटर्नशिप और फॉर प्लेसमेंट, उनके फॉर्म्स टाइमली फिलअप करने होते हैं. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द डेडलाइन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. जो भी टास्क मिलता है, हर टास्क एक डेडलाइन के साथ आता है जो आपको स्ट्रिक्टली अडहेयर करनी होती है, अदरवाइज देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस. सो या बी रेडी फॉर दैट. Also, you have to start taking attendance very seriously over here. Otherwise, you'll have to face grade drops because again, DU में मैं खुद ही नहीं जाती थी DU के कॉलेज, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था. अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मे बी आपने फेस किया अटेंडेंस के इश्यूज, बट मोस्टली अटेंडेंस चिल होती है ग्रेजुएशन के टाइम पे.
बट यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है अटेंडेंस का। प्लस आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी भी चाहिए, बिकॉज जो एग्जाम्स आप पेपर में देते हो, अगर आपने क्लास में सुना हो एंड आप एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ो तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। प्लस क्लास आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए नहीं अटेंड कर रहे हैं, आप नॉलेज के लिए भी अटेंड करते हो, तो क्लास तो अटेंड करनी ही चाहिए। यहाँ पे आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर आप क्लासेस ही ना लो तो देयर इज नो पॉइंट। तो आपको प्रैक्टिकली भी क्लास अटेंड करनी चाहिए एंड अटेंडेंस वाइज भी आपको अटेंड करनी चाहिए। देयर आर ओनली सर्टेन नंबर ऑफ क्लासेस दैट यू गेट टू मिस ओवर हियर। Like in my case, I don't know about all the other B schools, but for me, Ford School of Management में अगर आप एक full credit course कर रहे हो जिसमें अगर 20 classes का एक आपका अगर subject है तो you have to attend 16 lectures out of it, and अगर वो 10 classes का subject है तो you have to attend 8 lectures out of it। वो क्लासेस या 4 क्लासेस का मार्जिन आपको इमरजेंसी, तबीयत खराब हो गई, कभी गलती से लेट उठ गए, कहीं जाना हो जरूरी, तो ऐसी चीजों के लिए बचा के रखना होता है। फालतू में कि आज मन नहीं कर रहा, क्लास नहीं जाते, ऐसे क्लासेस मिस नहीं करनी। यहाँ पर पॉइंट इज रिलेटेड टू स्लीप। अगर आप अब तक अपने मन के मुताबिक कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, तो वो सब भूल जाओ। I used to sleep in half the day before my MBA life, and as soon as I got into it, oh my god, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल में नहीं रह रही थी, मैं घर से कॉलेज ट्रैवल करती थी एंड अगर 8 बजे की क्लास होती थी सुबह तो मुझे उसके लिए 6 बजे उठना ही पड़ता था एंड रात को 2-3 बजे से पहले सोने को नहीं मिलता था बिकॉज कॉलेज के काम भी होते थे एंड आई हैड माई यूट्यूब कॉन्टेंट वर्क एज वेल। तो मुझे कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू अदर्स मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मैं कंटेंट का काम रात को ही करती थी। देयर विल बी डेज जब आपके पास छुट्टी होगी, अगर आपके पास और कोई काम नहीं है तो यू फ्री टू स्लीप इन द एंटायर वीकेंड, बट मेरे पास मोस्टली कंटेंट का काम होता था तो मुझे वीकेंड पे भी सोने को नहीं मिलता था इतने अच्छे से। क्लासेस के अलावा आपके कॉलेज में सेमिनार, लीडरशिप टॉक्स ये सब आते हैं। कई बार ऐसे होता है कि जब आप लेक्चर सुन रहे होते हो तो आप ऐसे डोज ऑफ होने लगते हो। बी प्रिपेयर्ड दैट यू विल हैव टू कंट्रोल योर स्लीप अ लॉट ऑफ टाइम्स। जो कमेटी सिलेक्शन का वीक होता है उसमें इतने सारे राउंड्स होते हैं, हर राउंड के अलग अलग टास्क होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, एंड आप हर कमेटी के राउंड्स दे रहे हो तो वो उस वीक में तो भूल जाओ नींद क्या होती है। वो हफ्ता तो मेरा ऐसे था दैट आई विल नेवर फॉरगेट इट फॉर माई एंटायर लाइफ। बट आप ये मान के चलो कि ये वाली हसल जो है ना, जो आप यहाँ पर रगड़ना सीखोगे, दिस विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग। मे भी आपको प्रेजेंटली ये फेज अच्छी नहीं लगे बट आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस आगे समझ आएगी। इतना एक्सपेंसिव कोर्स अगर आप कर रहे हो तो आप अपने करियर को लेके सीरियस हो। वो वाले फिर कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे अगर लाइफ में कुछ बनना है तो। आप प्लीज इन बातों से डरना मत। अब बस यही सोच के चलो कि अब टाइम आ गया है दैट यू हैव टू गिव योर 100%। अगर खुद को प्राउड करना है, पेरेंट्स को प्राउड करना है, तो आपको अब हासिल करनी पड़ेगी। एक हेल्दी अमाउंट ऑफ स्लीप मिलेगी, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल सोने को नहीं मिलेगा, बट देयर विल बी सम डेज जिसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा तो थोड़ा बहुत ऐसे दिक्कत आएगी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। नेक्स्ट इज ड्रेस कोड। मैं आपको इस वक्त एक बी सूट में दिख रही हूँ। आई चोज टू वेयर अ बी सूट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। दिस इज गोइंग टू बी योर अटायर फॉर हाफ द ईयर। बहुत अलग है कि मैंने अभी नीचे पजामा पहन रखा है। दैट इज समथिंग कंप्लीटली अनरिलेटेड। एनीवे, आपको बी सूट रोज रोज नहीं पहनने होते, बट अगर कोई बैच मीट है, कोई लीडरशिप टॉक है, कोई प्री प्लेसमेंट टॉक है किसी कंपनी की तरफ से, या फिर आपको कोई इंटरव्यू वगैरह कोई प्रोसेस है, तो आपको बी सूट्स पहनने होते हैं एंड यू हैव टू बी वेरी कॉपरेटली, वेरी प्रोफेशनली ड्रेस्ड। किस तरह के आपके आउटफिट होने चाहिए वो आपको कॉलेज डिस्क्राइब कर देगा। अपार्ट फ्रॉम योर आउटफिट यू हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ योर हेयर। गर्ल्स हैव टू टाई देयर हेयर बैक इन अ पोनी एंड बॉयज हैव टू बी क्लीन शेवन। लड़कों को ये बहुत बड़ा झटका लगता है बी स्कूल में आके। अगर आप एक बॉय और आप ये वीडियो देख रहे हो, अपनी बियर्ड को टाटा बाय बाय बोल दो, बिकॉज बॉयज हैव टू बी क्लीन शेवन व्हेनेवर दे हैव टू वेयर अ बी सूट। एंड जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, फर्स्ट ईयर में लड़कों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि उनको बहुत फ्रीक्वेंटली शेव करना पड़ता है। सो अब इससे ज्यादा डिटेल तो मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, बीइंग अ गर्ल। So be prepared for that. And for girls, you have to tie your hair back. And the kind of casual clothes that you have to wear, you cannot wear just anything. You have to follow a particular, code of conduct. So you have to wear smart casuals. Crop top, tank tops, tube tops. ये सब आप ड्यू वाले फैशन यहाँ नहीं मार सकते. You have to be professional. So you have to wear एक decent clothes. एंड मैंने जब कॉलेज के लिए शॉपिंग कर रही थी तो मैंने एक मिंत्रा हॉल बनाया था। यू कैन चेक दैट आउट अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए कि आपको किस तरह के कपड़े लेने चाहिए। अगर आप अभी सर्च में अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग योर हेल्थ वेरी सीरियसली, बिकॉज आप यहाँ पर फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट काफी होते हो। तो उसमें अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भूल गए, आपने अपनी हेल्थ नीड्स को निग्लेक्ट कर दिया, तो फिर एक ही बारी आप बीमार होंगे। एंड यहाँ पर आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा।
तो कई बार मैं दिन में ऐसा होता है कि मैं पानी ही पीना भूल जाती हूँ, सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट. So make sure that you already get in the habit of eating your fruits, your vegetables, पानी अच्छे से पियो. In general अपनी हेल्थ का ध्यान रखना अभी से शुरू कर दो. अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो स्पेशली ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह से, ग्रोफर्स वगैरह से आप प्लीज ये सब मंगवाते रहना, खाते पीते रहना. आई नो दिस इज नॉट अ वेरी प्रोफेशनल पॉइंट, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टू नॉट निग्लेक्ट दिस टॉपिक. घर में रह रहे होते तो हमारे न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, हमें पता नहीं लगता. मम्मी अपने आप आके फ्रूट की प्लेट देगी, हमने खा लिया. घर में मोस्टली ऐसे होता है. एंड अगर आप पूरा दिन कॉलेज में होते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाती है. अगर आप घर से जा रहे हो तो आप फ्रूट्स वगैरह साथ लेकर जाओ. मैं भी लेकर जाती थी जब मैं घर से जाती थी. तो वहाँ रह रहे हो तो वहाँ से मंगवा लो. अब उसमें आपको खुद को थोड़ा पुश करना पड़ेगा. मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं मंगवाती हूँ और वो पड़े रह जाते हैं. आई एम स्टिल ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट. माई पॉइंट वॉज दैट प्लीज डू नॉट निग्लेक्ट दिस. Coming 3 points are very important, so I've saved the best for the last. So the next point is networking. Learn the real meaning of networking and building connections. By the word connections, I don't mean LinkedIn के connections. They are just numbers, even though they do matter. अगर आपकी LinkedIn पे 500 plus दिखना चाहिए, it looks good, but still they are just numbers. You have to make real connections over here, because यहाँ पर जो आपके connections बनते हैं and those will be with you lifelong and mutual benefit होता है. आप कभी भी उनकी help कर सकते हो, वो कभी भी आपकी help कर सकते हैं. Real growth in your life happens because of your network, because of your connections. You get that way forward. अगर आपको कभी भी in future job switch करनी हो तो connections की reference के through it happens easily. So that is why we say network is net worth. In your B school life as well आपको networking बहुत काम आएगी, because आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती. So you need to seek help of your seniors. And अपने बैच में भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आप स्ट्रांग होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपका फ्रेंड स्ट्रांग होगा. बिकॉज MBA में हर तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं डाइवर्स बैकग्राउंड के. वो साइंस से रिलेटेड भी होते हैं, वो कॉमर्स से रिलेटेड भी होते हैं, एंड वो जनरल भी होते हैं. सो एक दूसरे की हेल्प कर करके यू मूव फॉरवर्ड. इवन दो इट्स अ कम्पिटिटिव कोर्स, यहाँ पर सब कुछ रिलेटिव होता है, बट स्टिल अपने बैच के साथ तो विद टाइम यू स्टार्ट बिकमिंग अ फैमिली ओवर हियर एंड यू हेल्प ईच अदर. एंड फॉर नेटवर्किंग व्हाट यू कैन डू इज, जब आप कॉलेज जाना शुरू करो, आप अपनी क्लासमेट से इंटरैक्ट करो, अपने बैच से इंटरैक्ट करो, दूसरे सेक्शंस के बच्चों से भी आप एक्टिविटीज में पार्ट लो. जो भी होता है आप कहीं पे भी अपने आप को पीछे मत रखो, ताकि आप लोगों को जानो और लोग भी आपको जाने, लोग भी आपको पहचाने. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडिपेंडेंस डे में पार्ट लिया था स्टार्टिंग में, तो उस इवेंट के थ्रू मेरी दूसरे सेक्शन के बच्चों से भी बात हुई. जो उस इवेंट में मेरे ही सेक्शन के बच्चे थे उनसे मेरी फ्रेंडशिप और गहरी हुई. मेरी इंटरेक्शन सीनियर्स से हुई, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस सीनियर्स कराते हैं. बी स्कूल्स आर कम्प्लीटली स्टूडेंट ड्रिवन, तो जो भी कमिटीज वगैरह होती है वो सब सीनियर्स हैंडल करते हैं. दैट विल बी माई नेक्स्ट पॉइंट, उस पर तब ज्यादा बात करेंगे. फ्रेशर्स इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी नोन. आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप अपना गोल बना के बैठ जाओगे मिस्टर या मिस फ्रेशर्स बनना ही है, बट आई एम जस्ट अर्जिंग यू टू टेक पार्ट इन ऑल सच एक्टिविटीज, ताकि आपको एक एक्सपोजर मिले. इन सब चीजों से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है एंड लोग आपको जानते भी हैं, आप लोगों को जानते भी हो, तो ये सब चीजें काम आती हैं. व्हेन यू स्टार्ट नेटवर्किंग विद योर सीनियर्स, दे हेल्प यू आउट, दे गाइड यू. आगे सब्जेक्ट सिलेक्शन आएंगी, इंटरव्यूज में कैसे परफॉर्म करना है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में समर इंटर्नशिप्स होती हैं जो आपको, जिसके लिए आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो उसमें कैसे परफॉर्म करना है. आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, योर सीनियर्स हेल्प यू आउट विद दैट. आई थिंक मैंने नेटवर्किंग के ऊपर काफी बात कर ली है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. Now I'm going to talk about committees, और कई कॉलेजेस में इसको काउंसिल्स भी बोलते हैं. मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ अ काउंसिल और अ कमिटी ऑफ योर ओन बी स्कूल, बिकॉज आपको इससे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोजर मिलता है. कमिटी सिलेक्शंस में जब आप पार्ट लेते हो, आप ईगरली, आप हर राउंड के लिए आप इतना एफर्ट डालते हो, आप प्रेजेंटेशन देते हो और आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो जो आपने पहले कभी करी नहीं होती, तो उससे एक आपका होराइजन भी काफी ब्रॉड होता है. मैंने पर्सनली काफी कुछ सीखा था कमिटी सिलेक्शंस के टाइम पे, चाहे वो कैनवा अच्छे से चलाना हो, एक ऐसे ग्रुप्स के साथ काम करना जिनको आप कभी जानते भी नहीं थे, तो इससे एक आपका सोशलाइजिंग स्किल भी बढ़ता है एंड काफी चीजें एक साथ हैंडल करते हो आप, काफी कमिटीज के राउंड्स लेते हो, तो एक वो मल्टीटास्किंग वाला फैक्टर भी आ जाता है. एंड आप कमिटी सिलेक्शन के थ्रू और फ्रेंड्स बनाते हो, आप और ज़्यादा सीनियर्स से इंटरैक्ट करते हो, आप अपने कॉलेज से ज़्यादा अच्छे से फेमिलियर होते हो. बट अगर आप नहीं हुए तो इट्स ओके, तो तब भी काफ़ी और तरीके होते हैं नेटवर्किंग एंड ऑल के. बट अगर आप होते हो देन दैट्स ग्रेट, दैट एक्सपोजर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है दैट इट इज़ लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ. कई लोग हो सकता है इससे अग्री ना करें, बट मैं जब से कमेटी का पार्ट बनी हूँ मुझे एक जॉब वाली फील आती है इसमें, बिकॉज आपको टास्क की डेडलाइंस दी जाती है, आपकी टीम मीटिंग्स होती है, आप सीनियर्स को आंसरेबल होते हो, आप सीनियर्स के ऊपर प्रोफेसर्स को आंसरेबल होते हो.
सो इट इज़ लाइक अ गुड टेस्ट रन ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। बहुत डिफरेंट तरह के सिचुएशन से गो थ्रू करोगे जब आप कमिटी में काम करोगे, तो एक वो एक्सपोजर भी काफ़ी हेल्प करता है आपको ग्रो करने में। आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है जब आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, आप कॉर्पोरेट्स को इनवाइट करते हो, आप सेमिनार्स कंडक्ट करते हो, एंड हर कमेटी का अपना अलग अलग एक रोल होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है, प्लस एक वो टीम स्पिरिट होती है। सो इट इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग टू बी इन अ कमिटी। सो मेक श्योर दैट यू ट्राई योर बेस्ट टू be in one, and when you are in one, make sure to make the most out of it. And if you are not in one, then also it's fine, don't be disheartened. You can try to be a part of your student council, president, vice president of student council, academic secretaries of student council. आप ऐसी चीज़ों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इन फ्यूचर। आप वॉलंटियर कर सकते हो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में, हेल्प करने में, ताकि यू गेट द टेस्ट ऑफ व्हाट इट फील्स टू बी लाइक टू हैव दैट एक्सपीरियंस। The last topic is you have to be well read. And by well read, I mean apart from your own subject, your own background, you have to be well read about the current topics as well, because you will be sitting for internship placements. They usually start from September. जैसे टाइम बढ़ता है, the number of processes also start increasing. आपको नहीं पता आपका CV कहाँ शॉर्टलिस्ट होगा। CV से मुझे याद आया कि ये लास्ट पॉइंट नहीं है, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास, बहुत सारा ज्ञान दूंगी मैं आज। आपको नहीं पता आपका CV कब शॉर्टलिस्ट होगा, तो इसलिए आपका कभी भी कोई भी प्रोसेस आ सकता है। आपको आज पता लगेगा कि आपका कल इंटरव्यू है, आपका कल GD है, तो अकॉर्डिंगली आप एक रात में सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप शुरू से हैबिट डालोगे, थोड़ा बहुत आप अवेयर रहोगे टॉपिक्स के बारे में, तो दैट विल गिव यू एन एज ओवर दी अदर्स। एंड मेक श्योर दैट यू आर कॉन्स्टेंटली थोड़ा बहुत आप देख रहे हो कि आप, अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू स्किल्स में लैक कर रहे हो या फिर आप GD में कहीं लैक कर रहे हो, तो आपको थोड़ा उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ वर्क करते रहो। यू नो व्हाट, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताना चाहूँगी। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ टू गो अबाउट परफॉर्मिंग इन GDs until I got admission into 4. बिफोर दैट मैंने मतलब एडमिशन के टाइम पर जो भी GDs हुए थे वो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पर ही होते थे। आई यूज टू नेल दोज बिकॉज आई हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि मैं GD तो अच्छे से टैकल कर सकती हूँ। अगर आपको बेसिक कुछ 4-5 टिप्स पता है अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर बिहेवियर, यू कैन डू अ GD वेरी वेल। आप जिस भी स्कूल में होते हो ना, आपके आसपास जो भी बच्चे होते हैं वो सब वही चीज़ें क्लियर करके आए होते हैं, वही एग्जाम उतनी ही परसेंटाइल लेकर आए होते हो जितनी आप लाए हो, वही इंटरव्यूज क्लियर करके आया था जो आप क्लियर करके आए होते हो। तो वो सब या तो आपके ही लेवल के होंगे या आपसे 2 कदम आगे ही होंगे, ये मान के चलो। एंड ये मान के आप अपनी प्रिपरेशन करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप डरो, आप इंटिमिडेट हो जाओ। मैं पर्सनली बहुत इंटिमिडेट हो गई थी स्टार्टिंग में, एंड मेरा 2-3 GDs मैंने दिए थे, मॉक GDs, दे वर नॉट फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल। वो अच्छे नहीं हुए थे मेरे, बिकॉज यहाँ पर ना धीरे धीरे आपका लेवल ऑफ टॉपिक्स भी काफ़ी एडवांस होता रहता है। उस टॉपिक के बारे में नहीं पता तो आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे। अगेन मैं थ्रू आउट द वीडियो बोल रही हूँ, मैं डरा नहीं रही, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। टुडे आई एम प्लेस्ड, मतलब मेरी जॉब नहीं लगी, वो तो सेकंड ईयर में लगती है, बट फर्स्ट ईयर में हमारा टारगेट होता है समर इंटर्नशिप बैक करना। वो मेरी लग चुकी है एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिवील कि कहाँ लगी है, बिकॉज जब वो टाइम आएगा मैं तभी बताऊंगी। आई डोंट थिंक आई एम अलाउड टू पब्लिकली एक्सपोज इट एज ऑफ नाउ, इसलिए अभी मैं नाम नहीं लूंगी कंपनी का, but it's one of the best companies in the field of finance जहाँ मेरी लगी internship, and I'm very happy and very proud about it. And I'm the same person who got intimidated by the interview processes, by the GD processes. I did not get good feedbacks about myself. Good as in कि they were good for my growth, but मेरी बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी जो कि मुझे उन mock GDs या mock interviews से मिली। गलतियाँ पता लगी तो इम्प्रूव भी किया। कि आप डरना मत, चीज़ें हो जाती हैं, बस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में पहले से, इसलिए मैं बता रही हूँ। फाइनली द मोस्ट हेल्पफुल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द टाइम जब आपके इंटरव्यू प्रोसेसेस चल रहे होंगे, तो आपके पास इसके अलावा ज़्यादा और कोई काम होता नहीं है। दिस इज द टाइम दैट यू कैन यूटिलाइज टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर CV, क्योंकि जब आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे ना, तब आपको 1 महीने में बोला जाएगा कि आप अपने CV बना के दो। आपको एक फॉर्मेट देंगे जिसके हिसाब से आपको एक CV बनाना है। एंड अगर आप फ्रेशर हो मेरी तरह, मैं फ्रेशर तो नहीं थी बट स्टिल इट वाज माय सेकंड मास्टर्स, तो मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, ना मैंने कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रखी थी। तो आप अपना CV बनाना शुरू करोगे एंड आप 2-3 पॉइंट्स डालोगे एंड यू विल बी लाइक ये तो खाली है, अब मैं इसमें और क्या डालूं। दिस वाज द वन पॉइंट जो सुन के मैं ऐसा होती कि यार मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया ये, एंड दैट इज start doing certification courses from Coursera। ऐसे 1-2 वेबसाइट्स और हैं जिनके मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहे, I'll add it on the screen। ग्रेट लर्निंग से आप कोर्सेज कर सकते हो।
make sure that you start doing these certification courses because they are absolutely free of cost and they will help you upgrade your knowledge as well. And CV में वो certifications आएंगे तो that leaves a very good impression of you. तो अगर आप लाइव प्रोजेक्ट कोई ऑनलाइन ले सकते हो, कोई ऑनलाइन इंटर्नशिप ले सकते हो साथ में, तो आप वो चीज़ करो रिलेटेड टू योर स्पेशलाइजेशंस और योर इंटेंडेड स्पेशलाइजेशंस बेसिकली। उन सब चीज़ों पर अभी से काम करना शुरू कर दो ताकि उस टाइम पर आपके पास चीज़ें हो सीवी में ऐड करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। आधे बच्चे रो रहे होते हैं कि यार मेरे सीवी में तो कुछ है ही नहीं, एंड कई बच्चों की सीवी इतने फुल होते हैं दैट यू स्टार्ट फीलिंग इंटिमिडेटेड। अगेन आई एम नॉट स्केयरिंग यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट इंटिमिडेटेड फीलिंग जो कि मुझे झेलनी पड़ती है बिकॉज I did not have a lot of things in my CV. Once I realized that mistake, I started working on some certifications as well. These were all the things that I wish I knew before to be prepared. Again, repeating my point, please don't get intimidated. It is difficult in the beginning, but once you get the hang of it, you start enjoying the B school life. मुझे अभी से ऐसे लगने लग गया कि यार बस अब ये 1-1.5 साल ही बचा है, उसके बाद तो प्रॉपर कॉर्पोरेट स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टूडेंट लाइफ का 1-1.5 साल बचा है। You are going to enjoy this life. Trust me, joining a B school is a roller coaster, and roller coaster में ups and downs आते हैं, but it is fun, right? I just made this video not to scare you guys, but to prepare you guys. अगर मुझे ये सब चीजें एडवांस में पता होती तो मे बी मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती। With time things did get better, and हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई इवेंट्स वगैरह आते रहते हैं। लाइक वी हैड अ डांडिया नाइट, वी हैड जेनेसिस, दैट इज द एनुअल फेस्ट, उसके व्लॉग बने हुए हैं, डांडिया नाइट का व्लॉग बना हुआ है। आपको ज्यादा डर लग रहा है ना, आप एक बार मेरी MBA लाइफ की प्लेलिस्ट खोलो और देख लो मैंने उसमें जो जो व्लॉग्स बनाया है, बिकॉज मैंने उसमें सारे फन डेज दिखाए हुए हैं, चाहे वो हमारा डांडिया नाइट हो, चाहे वो हमारा इंडिपेंडेंस डे हो, या फिर वो हमारे जेनेसिस के 2 व्लॉग्स हो, 2 दिन का पूरा हमारा फेस्ट चला था, तो मैंने सब कुछ कवर किया है। ये साइड देख रहे हो तो आप वो साइड भी देखो। हैप्पी डेज एंड देयर आर बिजी डेज as well, but अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता होंगी then you will have to face a lot of anxiety and stress, but अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, आप already mentally prepared हो, then things will be very easy for you. So yeah, that was my main purpose of making this video, and I hope you guys enjoyed watching this video. Comment down below अगर आपको ये helpful लगी तो आपको और जो भी आपके doubts है, आपको कोई अलग separate topic पे video चाहिए MBA से related, I will happily make it. एंड अगर आपको कोई डाउट है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, लीव इट इन द कमेंट्स, आई विल आंसर इट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी हो इस सब से रिलेटेड। माय डीएम्स आर ओपन फॉर यू गाइज, आई विल ट्राई टू बी एज हेल्पफुल एज आई कैन। मैं कॉलेज की एडमिशन कमेटी में ही हूँ, तो मेरा तो काम है अपकमिंग बच्चों को हेल्प करना। अगर आप 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के इंटरव्यू प्रोसेस में आओगे तो मैं आपको वहाँ पर्सनली मिलूंगी, बीइंग अ पार्ट ऑफ 4 कनेक्ट। आप और किसी भी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, आपको मुझसे कुछ पूछना है तो यू कैन लीव मी अ मैसेज, आई विल श्योरली रिप्लाई। विद दैट आई सपोज दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। If you found it helpful, make sure to share it with the other friends as well, and make sure to like this video. I'm not asking for likes ताकि numbers बढ़े मेरे वीडियो पे, I don't care about numbers इतना, but YouTube के algorithm को likes चाहिए होता है। ये वीडियो spread तभी होगी जब इस पे likes ज्यादा आएंगे, तो और ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी अगर आप like करोगे। तो make sure to do that, leave a comment, subscribe to my channel if you haven't already, and with that I'll see you guys next time. Bye bye.